لیکن ایک خاتون جو ان کی بیوی ہے، ان کے انٹرسیشن سے خدا کے روح نے ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا. اور وہ شخص جو خدا سے دور ہے، خدا سے پیار نہیں کرتا اور اپنی سکسیس کے نشے میں یہ دھوتے تھے، بیسیکلی روپے پیسے کے نشے میں، اور جو ان کا دل کرتا تھا وہ یہ کرتے تھے. لیکن ایک بیوی کی دعا، ایک بہن، ہماری وہ بہن ہے، انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور خداوند نے ان پر رحم کیا، ان پر فضل کیا، اور انہوں نے ریپینٹ کیا، خداوند کے حضور معافی مانگی، اور خدا نے انہیں ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. اور اب وہ بدی، وہ گناہ آپ کی زندگی سے آپ کو بیسیکلی آپ ریلیز ہو چکے ہیں مکمل طور سے. وہ جوا، وہ بندھن آپ کی زندگی میں سے ٹوٹ چکا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی محبت کی خوبی ان پر یوں ظاہر ہوئی کہ جب یہ بھی گناہ گار ہی تھے، مسیح کی خاطر مسیح نے 2000 سال پہلے ان کے لیے جان دی. کس لیے جان دی؟ تاکہ ان کے گناہوں کو وہ اپنے بدن پر لے. اور جب مسیح نے یہ کام کیا، اور آج ہر شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، وہی جو ریزریکشن پاور ہے، وہی جو قدرت ہے یسوع کے خون کی، جو بھائی شوکت نے ایکسپیرینس کی، وہی قدرت آپ کی زندگی میں آئے گی اور آپ کے گناہ کو آپ کی زندگی میں سے توڑ کے رکھ دے گی. گناہ کا آپ پر اختیار نہ رہے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے جیسے بھائی شوکت آزاد ہوئے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ. عزیزو، یہ ہمارا خدا جو ریئل ہے، جو ہم سے بے حد محبت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. جی بھائی جی جاری رکھیں، میں تو آن اینڈ آن چلتا جاؤں گا. جی اس کے بعد پھر میں ایک سیمینار میں، ایک پاسٹر صاحب ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے گا. میں ابھی تک آفس چل رہا تھا، تو اس وقت ڈیجیٹل کیمراز ابھی ان ہی ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ تصویریں وغیرہ آپ بنا لیجئے. میں تصویریں بنانے کے لیے چلا گیا، اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں کلام سنوں یا اس میں سے کچھ لوں. یا جب وہ سیشنز اینڈ ہو گئے تو میں بالکل دروازے کے پاس چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پلپٹ سے جیسے ہی اترے ہیں وہ سیدھے میرے پاس آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ شوکت، کیا تو نے کچھ سیکھا ہے سیمینار میں سے؟ اور میں نے کہا نہیں، میں نے تو کچھ نہیں سیکھا، میں نے کلام سنا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. میں کھڑا ہونا چاہا احتراماً، تو کہتے ہیں بیٹھے رہے، تیرے ساتھ کچھ فرق ہی ہونا چاہیے. یہ مجھے الفاظ یاد ہیں. انہوں نے جیسے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، میرے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور میں آنکھیں بند ہو گئی. مجھے فیل ہوا کہ میں کسی اور ایٹماسفیئر میں چلا گیا ہوں. اور انہوں نے مجھ پہ نبوت کی. انہوں نے کہا کہ شوکت، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے، تجھے شاید میری ضرورت نہیں لیکن مجھے تیری ضرورت ہے، اور تو ان کو سکھائے گا جو بڑے مجمع میں کلام سناتے ہیں. میں تجھے استاد کی نعمت کے لیے بلاتا ہوں. اب یہ نبوت ہو گئی. میں مطلب مجھے نہیں پتا اس وقت کہ یہ نبوت میرے لیے ہو رہی ہے. وہ تو ایک بہن تھی، وہ پیچھے کھڑی ہو کے لکھ رہی تھی سارا کچھ. اور وہ سارا جب وہ ہو گیا، یہ سیشن اوور ہوا، تو اب سارا چرچ آ کے مجھ سے مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے کہ بھائی زبردست نبوت ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ نبوت کس لیے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا میری زندگی میں. اب سارے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. اچھا، وہ چیز تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے روح میں محسوس کرنا شروع کیا کہ میری راہیں اب فرق ہو گئی ہیں. مجھے کسی اور ڈائریکشن میں پش کیا جا رہا ہے. میں اپنی فطرت پہ قابو پانے لگا. گو کہ یہ آسان نہیں تھا. اسپرٹ آف لسٹ پہ اوور کم ہونا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. بہت مشکل کام ہے. میں اس فریم میں سے گزرا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے مارا جاتا ہے. خدا نے مجھے روح القدس سے معمور کیا. میں ایک میٹنگ میں تھا، وہاں روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور مجھے روح القدس نے سکھایا کرنتھیوں کے خط سے کہ اگر تو اپنی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے تو تجھے بیگانہ زبان میں دعا کرنی ہے. اب جو میری پرسنل پریئر ہوتی ہے، جو پرائم ٹائم خدا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ 100% بیگانہ زبان میں ہوتا ہے. یہ میری اس وقت سے عادت بن گئی ہے. تو روح القدس نے پھر میری مدد کی کہ میں اپنے جسم کے کاموں پر روح القدس کے وسیلہ سے غالب آ سکوں. اور وہاں سے پھر میرا جو انوالومنٹ شروع ہوئی. اب میں مسیح میں
मैं आना शुरू हो गया था और उधर से जो मेरा बिजनेस था वो अब शट डाउन होना शुरू, वो तबाह और बर्बाद होना शुरू हो गया था। जहां मैंने मार्केट से लाखों रुपए लेने थे वहां अब मैं लाखों का मकरूज हो गया। अच्छा। एट द एंड मुझे बिजनेस बंद करना पड़ा। मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी कि आप इस बड़े ऑफिस को छोड़ें और किसी छोटी मार्केट में चले जाएं। मैंने ब्लू एरिया को छोड़ा, मैं एक छोटी मार्केट में छोटे से ऑफिस में आके बैठ गया। अब वो बैंकर्स सारे मेरे ऑफिस में आते थे, क्रेडिट कार्ड्स थे और मतलब लोन्स थे, मार्केट का पैसा देना था। हर दूसरी कॉल जो मुझे आती थी वो धमकी की होती थी और वो थ्रेट्स होते थे कि हम तुझे गोली मार देंगे, हम तुझे अरेस्ट करवा देंगे, तेरे चेक्स हमारे पास पड़े हैं, डिसऑन हुए हैं। मतलब मैं एक इस तरह के फ्रेम में खुदा ने मुझे डाल दिया, ऐसी चक्की थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं निजात याफ्ता ना होता तो मैं सुसाइड कमिट कर चुका होता, मैं खुदकुशी कर लेता। जिस प्रोसेस, जिस चक्की में से खुदा ने मुझे गुजारा। और मैं ऑफिस जाके मैं रोया करता था घुटनों के बल होकर। मैं कहता था खुदा मैंने तो निजात पाई है, मैंने तो तौबा की अपने गुनाहों से, तुझे तो मुझे ज्यादा ब्लेस करना चाहिए ताकि मैं अब इंजील के लिए पैसा दे सकूं और मैं खादमों को सपोर्ट कर सकूं, पास्टर सफीर को, चर्च को, दूसरे चर्चेस को। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि मैं मतलब कौड़ियों का मोहताज हो गया हूँ। एट द एंड पर सर मुझे वो ऑफिस भी बंद करना पड़ा और मुझे अब घर से बैठ के मैं काम करना शुरू हुआ। अब ज्यादा इंसल्ट बेइज्जती ये हुई कि वो जो मोहल्ले में मेरी इज्जत बनी हुई थी, अब जब मैं घर शिफ्ट हो गया तो वो रश जो ऑफिस में आता था वो अब सारे के सारे लोग घर पे आने लगे। मार्केट के लोग भी, बैंक के लोग भी और रिश्तेदारों से भी जिन से को पैसा इन्वेस्ट करवाया हुआ था। और मेरा हर दूसरी नॉक जो दरवाजे पर होती थी, लोग आके उसको ठुड्डे मारते थे और कहते थे शौकत को बाहर निकालो, उसने हमारा पैसा देना है। मेरी माँ तंग आ गई, मेरे वालिद साहब तंग आ गए, मेरे बहन भाई तंग आ गए और वो कहते हैं कि बस तू कहीं चला जा इधर से, तू हमें नजर ना आ कि जो तेरी वजह से घर में हमारी बेइज्जती हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं और मेरी वाइफ हम कई रात हम रोते रहते थे सिर्फ इसलिए कि खुदा तू क्या कर रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ क्यों ऐसा हो रहा है। और खुदा खामोश था, बिल्कुल खामोश था। कोई जवाब नहीं हमें मिल रहा था, ना अंजलिना को कोई जवाब मिल रहा था, ना मुझे कोई जवाब मिल रहा था। एक रात पे मैं और अंजलिना हम दोनों रोजे की हालत में थे और मैंने खुदा में बहुत रोया खुदा के। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जो आप सुन रहे हैं ये एक पावरफुल टेस्टिमोनी है कि, और ये मैं समझता हूँ कि जो शुरू में खुदा के रूह ने मेरे मुंह से ये बात निकलवाई थी कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का आखिर नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए एक खुदा की नई राह तैयार कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि भाई शौकत के लिए अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा था या हो गया था तो खुदा इनके लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल रहा था। हालेलुया। और भाई के आंसू, जो ये आंसू हैं, ये रियल आंसू हैं। आप शायद कहें ये जी टीवी है, टीवी पर ड्रामे भी बड़े चलते हैं। अजीजों, ये एक रियल ट्रू स्टोरी है जो खुदा की इंस्पिरेशन से भरी हुई है, खुदा की हुजूरी और खुदा के प्लान से भरी हुई है, जिसने भाई की जिंदगी को बदला है। और इसलिए ये रो रहे हैं क्योंकि ये सच जो खुदा ने इनकी जिंदगी में जाहिर किया, जो अपने कलाम की कुदरत को, अपने प्लान्स को इनकी जिंदगी में जाहिर किया, जिसमें कई दफ़ा हमें इस चक्की में से हम इस ज़रूर जाते हैं, लेकिन बेसिकली खुदा हमें तैयार करता है अपने बड़े प्लान्स और बड़े मकासद को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जी ब्रदर जी, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया ताकि आप प्रेज द लॉर्ड। उस रात जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने मुझसे बात की और वो सिर्फ एक लाइन थी। जब खुदा आपसे बात करता है ना तो उसका सिर्फ एक लफ्ज भी बहुत होता है, एक लफ्ज। और खुदा ने मुझे एक लाइन दी। खुदा ने कहा शौकत सुन, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तेरे किरदार पे काम कर रहा हूँ। और ये लाइन थी। फिर मुझे इस तरह जैसे दिलेरी मिल गई। फिर मैंने खुदा को कहा, मैंने कहा खुदा अब मैं कभी नहीं रोऊंगा तेरे हुजूर, मैं शुक्रगुजारी करूंगा कि तू मेरे साथ है और तू मुझ पे काम कर रहा है। और अब ये जो आंसू, ये खुशी के आंसू, ये खुशी के, ये उस कंसोलेशन के
आंसू हैं जो खुदावंद ने अब आपकी जिंदगी में रखे हैं। ये वो पशेमानी के, नदामत के या एक डिफीट जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं या मायूसी से जब हार जाते हैं, ये वो आंसू नहीं है, ये खुशी के, ये कंसोलेशन और फतह के आंसू हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहीं पर एक बड़ा क्रूसेड अब यहाँ कर सकते हैं इस अनॉइंटिंग में। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह इसी लम्हा बहुत से लोगों को छू रहा है और आपके बंधन खुल रहे हैं, आपके जुए टूट रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ भाई शौकत ने एक्सपीरियंस किया है, आप जो अपने बंधनों में हैं, जुओं में जकड़े हुए हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं, बुरी आदत से जकड़े हुए हैं, वो बुरी आदत की जंजीरें पाकरू के मसा के सबब से तोड़ी जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो कुछ भाई शौकत ने एक्सपीरियंस किया है, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में भी वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जी ब्रदर जी, जारी रखें। मैं इस सब कुछ में जब मुझे सिर्फ ये लाइन मिल गई खुदा से, फिर मैंने अपनी दुआ जिंदगी को फोकस किया, फिर मैंने बाइबल खोल ली। अब चूंकि ऑफिस में नहीं जा सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था, अब मैं था और मेरा खुदा था। और फिर अंजलिना, हम दुआ करते थे और मैंने पर सब मैंने गुर्बत की इंतहा देखी है और मैंने अमारत की भी इंतहा देखी है। अब अगर कोई मुझसे आके कहे ना कि मैं गरीब हूँ, मुझे पता है कि उसकी फीलिंग्स क्या है। मुझे पता है कि 3 वक्त में से जब एक वक्त वो भी आपको आधी रोटी मिले तो वो फीलिंग्स क्या होती है आपकी, और दूसरे के लिए आप सोचें कि क्या होगा। मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बेटा, खुदा ने फिर हमें औलाद भी बख्शी, उसे हमने स्कूल में दाखिल करवा दिया और वो दाखिले मार्च अप्रैल में होते हैं, तो वो नेकर और हाफ बाजू शर्ट थी जो उसको उस वक्त लेकर दी हमने। और नवंबर आ गया और एक दिन सुबह मेरा बेटा, अंजलिना उसको तैयार कर रही थी और वो मेरे पास आया और वो मुझे कहता है कि बाबा मुझे इन कपड़ों में ठंड लगती है। और मेरे पास उसके जवाब देने के लिए, तसल्ली देने के लिए भी कोई अल्फाज नहीं थे कि मैं आपको रिंग कोई यूनिफॉर्म ले दूंगा या कोई स्वेटर ले दूंगा या एटलीस्ट पूरी पैंट ले दूंगा। मैं उस दिन भी बहुत ज्यादा खुदा के सामने रोया। मैंने कहा, खुदा क्या तेरे पास मेरे लिए यही सब कुछ है? और मैं इसके बाद एक्चुअली ये खुदा ने ये मुझसे कलाम किया कि मैं तेरे किरदार पे काम कर रहा हूँ और मैं एक मजबूत ईमानदार तुझे बनाना चाहता हूँ। मैं इस सब कुछ में से गुजरा हूँ और उसके बाद बिजनेस इवेंचुअली शट डाउन हो गया। खुदा ने इस दरवाजे को टोटली बंद कर दिया मेरे लिए, और जो दूसरा इसके पैरेलल खुदा ने दरवाजा खोल दिया वो चर्च का था। मैं चर्च प्रॉपर जाना शुरू हो गया। अंजलिना और मैं बड़े पाबंद हो गए, बेटे को साथ लेकर हम चर्च जाना शुरू हो गए। और वहां पर अब मुझे ऐसे लगा जैसे असल में ये जगह मेरी है। हालेलुया। वो दरिया, वो कारपेट, वो फर्श, मुझे फील होता था कि मैं असल में यहाँ के लिए बुलाया गया बना हूँ। फिर हम पास्टर सफीर साहब के साथ मैंने शाम को विजिटेशन शुरू कर दी। मैं प्रॉपर उनकी डिसाइपलशिप में आ गया और 2007 से फिर मैं ऑनवर्ड मैं प्रॉपर चर्च के साथ फुल टाइम मतलब मेरी अपनी मर्जी से नहीं, मतलब मुझे हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ज्वाइन करना, खुदा की मर्जी। खुदा ये चाहता था, क्योंकि खुदा का ये प्लान था आपकी जिंदगी में, और आज आप एक सक्सेसफुल पास्टर हैं और बहुत कुछ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अब जहाँ खुदा आपको ले आया है वो शेयर कीजिए। टाइम तो हमारा ओवर हो चुका है, लेकिन हम इसको जारी रखेंगे ताकि ये अपनी सारी टेस्टिमनी को कंप्लीट करें। और फिर मैं चाहूँगा कि भाई जी आप आखिर में लोगों के लिए दुआ करें, ताकि जो बंधन खुदा ने आपकी ज़िंदगी में से खोले हैं, जो जुए तोड़े हैं, वो आज जिंदगियाँ आपकी दुआ से, और मैं समझता हूँ पाकरू की अनॉइंटिंग आप पर है, पाकरू का मसा आपकी ज़िंदगी पर है। जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं उनमें से आज बहुत से लोग निकलेंगे, और जैसे पाकरू आपको तहरीक देगा और वो अल्फाज और वो मसा जुए तोड़ेगा। प्रेज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिसके वसीले खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे। आमीन। थैंक यू।